So if I to show you again कि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, 10x के लिए वेरिएबल इज x और 10/x के लिए कुछ भी, अगर 9/x भी होता या 7/x भी होता, 5/x भी होता, then the variable is 1/x. 1/x और ये वेरिएबल में दिखने में अलग है ना, दिस आर डिफरेंट, है ना। तो इसलिए ये दोनों अनलाइक टर्म्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। सिंस दिस टू आर डिफरेंट वेरिएबल्स, दैट इज वाई दिस आर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। ऑब्वियसली यस, यू कैन गो इनटू दिस, इनके बीच में आप प्लस करवा सकते हो, बट टू अ सर्टेन पॉइंट अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू गिव यू एन एक्सप्रेशन ओनली, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन हुआ हमारा और दैट इज ग्रेट and thank you so much for initiating the discussion. So let's see, let's move ahead with the next topic, and also let me just tell Vishal sir, yes, I reverted that. ओहो, मुझे यहाँ पे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे इन्फॉर्मर्स बैठे हुए हैं, ग्रेट। So yes, today we'll start with new topic. Mm, great. Awesome. So thank you so much for everyone for coming. Till date we have learned about the addition and subtraction कैसे करते हैं algebraic expression पे. Today what we'll do, we will actually see कि कैसे multiplications करते हैं, ठीक है। So already we have completed the first part of this chapter. We are now today doing the third part of the chapter, that is multiplying algebraic expressions. So आज का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये तीनों की चीज़ों, तीन मतलब ये दो चीज़ों के ऊपर रिवॉल्व करेगा. फर्स्ट पॉइंट बीइंग कि वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड the three points, or we should actually remember this 3 points while doing multiplying algebraic expressions. Multiply करने के लिए 3 पॉइंट, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिया था कि ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, या रूल्स जैसे. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आई विल बी गिविंग यू 3 पॉइंट्स या रूल्स, जिससे यूज करके आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है. एंड देन विद दोस रूल्स विल बी प्रैक्टिसिंग मल्टीप्लाइंग, जहाँ पे विल डू मोनोमियल्स के साथ मोनोमियल्स मल्टीप्लिकेशन, बाइनोमियल्स के साथ मोनोमियल्स मल्टीप्लिकेशन, एंड बाइनोमियल्स के साथ बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. एंड टू डू दिस एक्टिविटी हाउ विल वी डू इट. फर्स्ट एक्टिविटी नहीं होगा क्योंकि रिकैप ऑलरेडी हो गया है, सो वी विल बी ओमिटिंग दिस एक्टिविटी. वी विल डायरेक्टली स्टार्टिंग विद मल्टीप्लिकेशन के रूल्स, ठीक है, थिंग्स वी शुड बी नोइंग फॉर मल्टीप्लाइंग. Then we will practice those rules between this monomials, binomials, and binomials. Okay. Following which I will give you a few challenging questions and then we'll have recap. This is how I have spanned out. Uh, huh. So in that, this is how we will be actually moving ahead in today's lesson. ठीक है, so activity नहीं होगा, sorry. So objective है कि we are going to learn how to multiply. Last time we did addition subtraction, today we will learn about multiplying, ठीक है. पूरा अलग यहाँ पे, this is a total different operation altogether, ठीक है. तो इसके लिए कुछ नए rules या कुछ अलग rules we have to follow during multiplication of algebraic expressions. So things to know for multiplying algebraic expressions, there are 3 things, ठीक है. One being obvious, that the sign rule. Sign rule obvious रहता है, sign rule हमेशा रहता है,
Apart from that, there are two other rules जो आपको follow करना है. So moving to the first rule. First rule है कि I won't read that. I will ask someone to read because I'm tired of listening my voice. I can, sir. Yes, I Manan. can read, sir. Next I one, can. basically Harsh and Manan, go ahead. While While multiplying algebraic expression like or unlike term does not matter, any given term can be multiplied. For example, 2x 2 can be multiplied with 6 6x. 6x can be multiplied with minus 7 and minus 7 2y. X can be multiplied with minus 5x. great, awesome. Thank you so much, Manan. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अनलाइक टर्म्स लाइक टर्म्स कुछ मैटर नहीं करता है. कोई भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है. इसके पहले हमने देखा है कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में वी कैन ओनली ऐड या सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए वो केस नहीं है. मल्टीप्लिकेशन के लिए यू कैन मल्टीप्लाई एनी टर्म विथ एनी टर्म, मतलब किसी भी टर्म के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन सी 2x² और 6x, these are not like terms because यहाँ पे x के ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो अलग है. So these are unlike terms, but this can be multiplied. Similarly 6x के साथ -7x²y. Similarly x के साथ 5x -5x. So these are unlike terms हो, like terms हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. We can multiply like terms के साथ unlike terms. We can multiply like terms and like terms. We can multiply unlike terms also. ठीक है? So this is the first rule. So is that clear? कि multiplication में like terms and like terms कुछ मायने नहीं रखता है. कोई कोई कुछ भी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है. I can see Shahid raising it, like Shahid giving me a thumbs up. Great. Others, is it not clear or? Clear. Okay, Manan says yes. Arfad also shows thumbs up. Okay. Okay. ठीक है. When we will actually, let's see how it happens. ठीक है. ये maybe this might be a little अभी confusing कि क्या हुआ ऐसा कि like unlike terms ही multiply हो कैसे पा रहे हैं. So let's see कि कैसे होता है. ठीक है. So second rule will be more around कि कैसे multiplication होता है. So maybe that will give you an idea of कि कैसे हो रहा है. So second rule, who wants to read? Maybe Arfat, come off mute and read. Arfat, hi Arfat. You wanted to read now? Yes, sir. Yeah, go ahead. While multiplying algebraic expression, we multiply the coefficients separately. We multiply exponents separately using the first law of exponents. Great, thank you so much. तो यहाँ पे this rule is more around कि कैसे multiplication होता है. ठीक है. कैसे ये multiplication like terms हो, unlike terms हो, कैसे ये multiplication होता है. So दो proper steps हैं multiplication के लिए. क्या है? फर्स्ट कि हम पहले कोएफिशिएंट को सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हैं. जो कोएफिशिएंट होते हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या चार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उसमें पहले हम कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं अलग से, और एक्सपोनेंट्स जो होते हैं उसको सेपरेटली एक और तरफ पे मल्टीप्लाई करते हैं यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. सो बिफोर डीप डाइविंग और शोइंग यू कि ये कैसे होता है,
पहले लेट्स ब्रेक डाउन द स्मॉलर कॉन्सेप्ट्स हियर. इसके बीच में हमको पता है कोएफिशिएंट्स क्या चीज होता है, वी नो एक्सपोनेंट्स क्या होता है, बट डू वी नो कि फर्स्ट लव एक्सपोनेंट्स क्या होता है? हमको क्या ये पता है कि फर्स्ट लव एक्सपोनेंट? No, sir. वी डोंट नो. फाइन. तो मान लो ऐसे दो टर्म्स है, a टू द पावर m और a टू द पावर n. तो यहाँ पे a इज एनी नंबर, ठीक है, और ये दो a है, दिस आर सेम, ठीक है, और उसके ऊपर अलग अलग एक्सपोनेंट्स है. एक के ऊपर एक्सपोनेंट m है, एक के ऊपर एक्सपोनेंट n है. सो ये जब मल्टीप्लिकेशन होगा, आंसर में आएगा a, ऊपर में ये जो एक्सपोनेंट्स है वो प्लस हो जाएंगे, एडेड हो जाएंगे, ठीक है. सो जब ये जो a है, इसको हम बोलते हैं बेस. अगर उसके ऊपर कोई नंबर रहा, एक्सपोनेंट रहा, देन वी कॉल इट अ बेस. सो इन दोनों में बेस सेम है, दोनों में बेस a है, सिर्फ एक्सपोनेंट अलग अलग है. सो ये दोनों जब मल्टीप्लिकेशन होंगे, जब ये बेस सेम रहेगा, तो ये जो आंसर में जो आएगा उसमें बेस सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर में जो एक्सपोनेंट्स है वो ऐड हो जाता है, ठीक है. सो आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ दिस. मान लो y स्क्वायर है और y क्यूब है, ये दोनों चीज़ है. y के ऊपर यहाँ पे 2 है, y के ऊपर यहाँ पे 3 है, दोनों मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, और y वेरिएबल इज सेम यहाँ पे. सो ये जब रूल फॉलो होता है, सो आंसर में y रहता है यहाँ पे, और ऊपर के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं दोज आल्सो गेट एडेड, वो ऐड होके y टू द पावर 5 होता है, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है. सो ये ध्यान में रखना. सो कैन वी प्रैक्टिस फ्यू ऑफ दिस? लेट्स सी. Yes, sir. ठीक है, b2 into b, टेल मी इसका आंसर क्या होगा? B2. B2 sir. व्हाई डू यू थिंक सो? b1 के ऊपर क्या होता है? जब यहाँ पे एक्सपोनेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? हाउ मेनी? Put one. एग्जैक्टली, जब भी एक्सपोनेंट ही नहीं B3. होगा. Sir, B3. राइट. सो जब भी एक्सपोनेंट नहीं होगा, या कोई, जैसे हमने पहले भी देखा, अगर कोएफिशिएंट नहीं है इसका मतलब ये सामने 1 है. सिमिलरली जहाँ पे कुछ नंबर नहीं होगा उसका मतलब वहाँ पे 1 ही है, ठीक है. ये ध्यान में रखना, मैथ्स में ये रहता है. सो जब भी इसके ऊपर या इसके सामने कोई नंबर नहीं होगा, इसका मतलब सामने 1 खड़ा हुआ है. Sir, B3. Following this rule, we get b3, right? Yes. If I ask you x square, Sir, question is come means I can put that B1. B के ऊपर 1 ना. yes, अगर b है तो इसका मतलब you can put b1, ठीक है. So if I give you this one, x square into y square, can this follow this rule, first love exponents? Will it follow? We can sir. It will follow, you're saying. Why? How, sir? That is what I'm asking you, Arfat. It will follow this one. Does not follow, sir. Exactly, it will not follow क्योंकि यहाँ पे, Sir, there is that variable is different. so यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसको हम बेस बोलते हैं, एक और टर्म. सो ये जो बेस है दैट इज डिफरेंट, सो दैट इज व्हाई इट कैन नॉट फॉलो दिस रूल. अगर बेस सेम होता, अगर दोनों में ही एक्स एक्स होता, देन ये 2 2 प्लस होके x टू द पावर 4 हो जाता, ठीक है. सो कीप इन माइंड ऑफ दैट, एंड let's try few more actually. Lalala. If I had to give you again फिर से एक और, S
2 into S10. If we follow this rule, क्या आएगा आंसर में? Sir, Yes, S12. 12, S12. 5. x12 perfect. 2 और 10 प्लस हो जा रहा है और x की is the base, similar base, that is why it will go. ठीक है, मतलब this will and multiplication जब होगा ऐसा कुछ होगा. ठीक है, so ये please ध्यान में रखना, whenever you will be actually multiplying you have to apply this first love exponents का rule. ठीक है, so ये तो हो गया हम लोगों का, ये दोनों रूल्स हमने पढ़ लिया. सो नाउ लेट्स सी ये रूल काम कैसे करता है, ये टोटल पूरा रूल कि कैसे मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट को अलग से करेंगे, कैसे एक्सपोनेंट्स को अलग से करेंगे मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, लेट्स सी दैट. तो एग्जांपल में है कि 2a² और 6a है, इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो नाउ टेल मी 2a² में कोएफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट हियर? 2. 2, राइट. सिमिलरली यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट है? 6a में. 6. 6. सो फर्स्ट 2 के साथ हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे वेरिएबल है a² और यहाँ पे वेरिएबल है, और इनको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे. सो जब भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने देंगे हमको, विल मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट अलग से एंड विल मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स अलग से. ठीक है, सो कोई आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में आई हैव मल्टीप्लाइड 2 के साथ 6, दोनों अलग अलग कोएफिशिएंट है, और देन आई हैव मल्टीप्लाइड द वेरिएबल्स अलग से. ठीक है. उसके बाद अभी वेरिएबल्स में आई एम फॉलोइंग दिस रूल, दिस लॉ, फर्स्ट लव एक्सपोनेंट्स, एंड वी नो सेम बेस है, when we are multiplying the exponents get added. As you can see 2 plus 1 that gives us, Yes. and finally इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया तो 12 ही आता है, we know that 10 into x equal to 10x. So some similar like that, and this gives us this answer. ठीक है, so you can see कि we have multiplied it separately. हमने सिर्फ कोएफिशिएंट को अलग से मल्टीप्लाई किया 2 into 6, और ये वेरिएबल को अलग से मल्टीप्लाई किया सेम वेरिएबल्स को, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद वी हैव फॉलोड दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉलो करने के बाद हमको आंसर मिल गया. ठीक है, सो इज दिस टाइप ऑफ सम्स आर क्लियर? Yeah, sir. अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों ऐसे Yes, sir. टर्म्स दे दिया, पहले हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम वेरिएबल्स को करेंगे, मतलब एक साथ ही हो रहा है, मतलब अलग अलग साइड में. ठीक है, और बीच में वो मल्टीप्लाइड है, एंड देन आंसर में कोएफिशिएंट का जो आंसर आएगा वो आएगा, ये वेरिएबल्स का जो आंसर आएगा वो आएगा, और उसको बाद में एक साथ मल्टीप्लाई करने से ये आएगा. नाउ लेट्स सी अगर ऐसा कुछ तरह का टर्म दे दिया हमको, अगर ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस दे दिया, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3a² और सेकंड एक्सप्रेशन है 2ab. तो इसमें क्या अलग है, यहाँ पे एक टाइप ऑफ वेरिएबल है, 2 टाइप ऑफ वेरिएबल है, 3 टाइप ऑफ वेरिएबल है. ठीक है, नाउ a² में a सेम है, 2ab में a सेम है, बट b यहाँ पे कुछ नहीं है, और कोएफिशिएंट अलग अलग है, 3 और 2 है. सो इफ वी फॉलो दिस रूल, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है. फर्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन हम देख रहे हैं वेरिएबल्स में क्या सेम है, देन वी आर सीइंग कि a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे ऊपर में एक के ऊपर 2 है, यहाँ पे एक के ऊपर कुछ नहीं है, दैट इज मीन 1 है यहाँ, बट फिर भी इनको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एंड फाइनली b के साथ यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होने के लिए नहीं है, देयरफॉर वी आर कीपिंग दिस b अलग से. सो ये मल्टीप्लाई होके 3 into 2 6 हो गया, ये मल्टीप्लाई होके a² into a ओके, a³ हो गया, a2 + 1 into b, एंड ये तीनों को जब हम मल्टीप्लाई एक साथ कर रहे हैं दैट गिव्स अस 12, नॉट 12, दिस शुड बी
6. Oh, this will be 6 a cube b. ठीक है? So you can see how stepwise I'm doing this. I'm not skipping any step. I'm just adding step. I'm following this rule step by step. पहले मैं coefficients को multiply कर रहा हूँ, फिर variables को multiply कर रहा हूँ. And जो similar kind of variables है, मान लो a same दोनों में ही a है, अलग अलग exponents हो सकते हैं. We are multiplying that first. एंड देन जो भी बचता कुछता है उसको हम बाजू में रख देंगे. एंड उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन हुआ फाइनली जाके सबको एक साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आंसर मिल जाता है. तो इज दिस क्लियर? टेल मी दिस. या यू हैव Yeah, sir, clear. or you have any kind of doubts, you can just ask me अभी. So out of 1 to 5 how much clear is this? ये दोनों रूल्स. Sir, 5. 5. 4, sir. 4. Or type on chat please. Okay, only 2 of us have responded. Max says 5. Great. What about others? Husna says 4. Fine. Sir, today we doing division also. डिविजन में उतना ज़्यादा काम नहीं रहता है जो जितना मल्टीप्लिकेशन में रहता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से बहुत कुछ आता है. इसके बाद आपका आइडेंटिटीज आएगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन काम में आएगा. डिवीजन उतना नहीं होता है अलजेब्रा में, बट आज से मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे हम. साहिल Okay. 3, आलिया says 4, हुस्ना says 4. ठीक है. Just waiting for few more responses. और कुछ रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहा हूँ. आई थिंक और कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा. फाइन. मुझे समझ में आ गया कितना यू हैव अंडरस्टूड. अल्फिया इज एट 232. ओके, ठीक है, नो वरीज. जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तब हमको और भी इजीली समझ में आएगा. सो दिस आर द फर्स्ट 2 रूल्स. ठीक, ये दोनों दिस आर द फर्स्ट 2 रूल्स दैट वी सॉ. नहीं. सो फर्स्ट रूल क्या था कि अनलाइक टर्म्स लाइक टर्म्स कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे. सेकेंड रूल क्या था कि हम मल्टीप्लाई जब करते हैं कोएफिशिएंट्स को अलग से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन वी मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स अलग से, वेयर वी फॉलो दिस फर्स्ट लव एक्सपोनेंट्स. एंड व्हाट इज दिस फर्स्ट लव एक्सपोनेंट्स? मान लो सेम तरह के बेस है, सेम तरह के वेरिएबल्स है, उसके ऊपर जो भी एक्सपोनेंट हुआ, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल सेम रहता है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाता है. दिस इज व्हाट वी लर्नड इन फर्स्ट लव एक्सपोनेंट्स. एंड देन वी सॉ कि कैसे ये पूरा लॉ जो है या पूरा जो रूल है ये कैसे प्ले आउट करता है किसी भी मल्टीप्लिकेशन में. सो वी गॉट अ फेयर आइडिया अबाउट दिस. सो लेट्स सी द थर्ड रूल एंड देन वी विल ट्राई और वी विल मूव टू प्रैक्टिसिंग दिस 3 रूल्स. ठीक है, ये 3 जो स्टेप्स या 3 जो रूल्स हमने अभी सीखेंगे वो प्रैक्टिस भी करेंगे. सो ये सिंपल है. सो अगर आपको दो मल्टीप्लिकेशन दो टर्म्स है जिसके अलग अलग साइंस है, आपको ये टेबल देख के आप समझ सकते हो कि आंसर जो आएगा वो क्या क्या है. And I guess you guys know all this. Again, एक second. Sir, tell to shine to हाँ, yes, put it. Okay, similar is that 3. Great. So मानो, तो थर्ड रूल इज द साइन रूल. मतलब साइंस क्या होंगे? साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं इन मल्टीप्लिकेशन. सो मानो एक एक्सप्रेशन का साइन प्लस है, एक एक्सप्रेशन का साइन प्लस है, तो आंसर जो आएगा दैट विल आल्सो कम प्लस में, पॉजिटिव साइन में. एक एक्सप्रेशन का साइन माइनस है, एक एक्सप्रेशन का साइन माइनस है,
आंसर जो आएगा दैट विल कम इन प्लस, वो भी पॉजिटिव में आएगा। और अभी अगर मानो कि एक एक्सप्रेशन का साइन प्लस है और एक एक्सप्रेशन का साइन माइनस है, दैट आंसर विल कम इन माइनस। सिमिलरली अगर उल्टा हुआ कि एक फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का साइन माइनस हुआ, सेकेंड वाले एक्सप्रेशन का साइन प्लस हुआ, दैट विल आल्सो कम माइनस। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट और दिस साइन रूल यू न्यू ऑलरेडी, आप लोगों को पता था क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों से सुना है। सो आई विल नॉट पुट दैट मच एफर्ट इन एक्सप्लेनिंग टू यू, rather I can give you some tricks here to remember this, कि कैसे याद रखना है। अगर आप देखो कि सेम तरह के अगर साइंस होते हैं दोनों एक्सप्रेशंस में, आंसर जो आता है वो पॉजिटिव में ही आता है। और जब भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस होते हैं दोनों एक्सप्रेशंस में, द आंसर कम्स इन नेगेटिव। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर दिस, कि सेम तरह के अगर साइंस हुए दोनों एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, द आंसर विल कम इन प्लस। सिमिलरली माइनस माइनस सेम तरह के साइंस है इन बोथ द एक्सप्रेशन, दैट विल गिव अस प्लस। सिमिलरली अलग अलग एक्सप्रेशंस हुआ, दैट विल गिव अस माइनस। ठीक है, ओके, उमेश has his hand raised. I will ask Umesh what's up. So can I say, Yeah, sir, that minus minus is equal to minus only? No, minus because Vishal sir said that minus minus it will be minus. No, minus minus is always plus. I'm confused here. No, minus minus is always plus. ठीक है, so देखो अगर प्लस प्लस हुआ then it's plus, माइनस माइनस हुआ तो भी प्लस। बट अगर इफ यू आस्क मी कि प्लस माइनस तब ये माइनस होगा या माइनस प्लस तब ये माइनस होगा, तो सेम सेम अगर साइन रहा दोनों एक्सप्रेशंस में, देन ऑलवेज इट इज प्लस। ठीक है, देख सकते हो प्लस दोनों में ही है, प्लस मानो x प्लस इंटू वाई, सो आंसर विल कम इन वाई, आंसर विल कम इन प्लस ओनली। सिमिलरली माइनस अगर है फर्स्ट वाला टर्म, सेकंड वाला टर्म भी माइनस है, द आंसर विल कम इन प्लस ओनली। ठीक है, अगर दोनों एक्सप्रेशन के बीच में साइंस अलग होते हैं, देन द आंसर विल कम इन माइनस। So let's see how it goes on. So but remember this table. ठीक है, remember this table and let's see practice में कैसे ये काम आता है। तो 3 rules हैं for not adding but multiplying, multiplying algebraic expressions. This is not something. So there are 3 rules for multiplying algebraic expressions. फर्स्ट है कि कोई भी टर्म्स कैन बी मल्टीप्लाइड, कोई भी गिवन टर्म्स मल्टीप्लाई हो सकता है, गिवन लाइक रेस्पेक्टिव ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोस कैन बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, सेकेंड रूल इज दैट कि व्हाइल मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट्स या कोएफिशिएंट जो होते हैं वो मल्टीप्लाइड अलग से होते हैं और वेरिएबल्स जो होते हैं वो अलग से होते हैं, using first law of exponents. So we learned कि क्या first law of exponents क्या होता है, and we saw कि coefficients कैसे multiply अलग से होते हैं and variables कैसे अलग से multiply होता है। ठीक है, and finally जब भी multiply करते हैं constants को या coefficients को, we must follow the sign rule as well. Sign rule भी हम follow करेंगे। ठीक है, तो this 3 rules हमको याद रहना चाहिए while multiplying and multiplying any algebraic expressions. ठीक है, so let's see कि ये practice में कैसे दिखता है। कितना टाइम हुआ है? We have time. Great. हाँ, ठीक है, so let's see in practice कि ये कैसे दिखता है, क्या कैसे क्या होता है। ठीक है, yes Umesh, do you have any doubts? So till now, before we start practicing these 3, ये प्रैक्टिस तीनों जो रूल्स हैं ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी, टेल मी ऑनेस्टली कितना समझ में आया कितना नहीं आया, क्योंकि आप लोग बहुत चुप हो आज और मुझे लग रहा है मैं बहुत बक बक कर रहा हूँ।
तो आई वांट ऑनेस्ट ओपिनियंस ऑफ, टेल मी कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। वो शायद से 6, ठीक है। आप अदर्स लाइक ठीक है 1 to 5 में ही बताओ कि कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। ओके, उमेश 3 मे बी बिकॉज यू आर कंफ्यूज, ठीक है। योर कंफ्यूजन विल गो जब भी हम ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तब, तो इट्स फाइन। कृष्णा से 5, अस्या से 3, ठीक है, कूल, नो वरीज। जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अरफत इज एट 4.5, दैट्स गुड। यस अस्या, ठीक है। महक says 4, good. Alfia is a 3. Okay, no worries. जब हम प्रैक्टिस करेंगे देन हमको समझ में आएगा, आई होप सो। ठीक है, आयशा इज अ 3 ऑल्सो। फाइन, लेट्स सी कि ठीक है, रूल्स तो हमने कर लिया, बट कैसे ये काम करता है ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे रियल लाइफ में तभी we will be able to understand it better. So absolutely it's okay if you are 3 also. अगर 0 में भी हो तब भी चलेगा, it's fine, ठीक है। So first question है कि 2a और 3b को हमको मल्टीप्लाई करना है। So first thing we will see here कि ये लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। So ये क्या है, लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है? Unlike बट कोई फर्क पड़ता है मल्टीप्लिकेशन में? No, No, sir. sir. So anyways it will get multiplied. So first रूल क्या था कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। सो ये तो मल्टीप्लाई होगा ही, 2a और 3b मल्टीप्लाई होगा ही। सो फर्स्ट रूल हम लोगों का चला गया। सेकेंड रूल इज दैट कि हम जब भी दो टर्म्स को या तीन टर्म्स, जो जितने भी टर्म्स हैं, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट पहले मल्टीप्लाई होंगे एंड देन वेरिएबल्स, मतलब कांस्टेंट को अपन अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इफ आई हैड टू शो यू, यहाँ पे बोला है 2a के साथ आप मल्टीप्लाई करो 3b को, सो आई एम डूइंग दैट। सो कांस्टेंट यहाँ पे कौन सा मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है 2a में? 2, यहाँ पे 3, 3. बीच में ये मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या वेरिएबल है? Yeah. यहाँ पे क्या वेरिएबल, सेकंड में क्या वेरिएबल है? B. सो नाउ टेल मी 2 into 3 का क्या आंसर आता है? 6. 6. Into a and b, ये B. इन तीनों का अगर एक साथ में मल्टीप्लाई कर दिया क्या आता है? 6। 6 ये B. समझ में आया प्रोसेस? Yes, sir. वी जस्ट मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट, मतलब अलग से मल्टीप्लाई किया सिर्फ, और कुछ नहीं। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे कुछ यहाँ पे अलग अलग बेस है इनका, मतलब बेसिकली दिस आर डिफरेंट वेरिएबल्स, इसलिए वो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी काम नहीं करेगा। बट यहाँ पे कोएफिशिएंट पहले मल्टीप्लाई कर दिया, आएगा आंसर 6। ए एंड बी कुछ मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है बट रख दे रहे हैं ऐसे ही, और फाइनली एक साथ तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरा 6a भी आ गया। ठीक है, तो ये जब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से, Okay. कुछ ऐसा दिखता है। तो दिस इज द थिंग विच आई डिड हियर। पहले मैंने आप देख सकते हो कि कोएफिशिएंट को मैंने अलग से मल्टीप्लाई किया एंड मैंने जो वेरिएबल्स है उनको अलग से मल्टीप्लाई किया, और फाइनली आंसर आया मेरा 6ab। ठीक है, सिमिलरली कैन वी ट्राई डूइंग दिस सम बाय आवरसेल्फ? Yes. 2a 3b एंड 4c, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। सेम आप क्या करोगे, कोएफिशिएंट्स को अलग मल्टीप्लाई करोगे और ये वेरिएबल्स को अलग मल्टीप्लाई करोगे, एंड यू नो द आंसर। I will give you 1 minute, नहीं 2 minutes to do this. Take your time. See, remember the rules and do this multiplication.
So let's see. किसने किसने किया? महक ने किया है. महक, I will ask you to come off mute. महक, if you can come off mute and share with me कैसे आपने किया. Sir, we first multiply 2a into 3b into 4c. ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया इसको. Then we put one side variable and one side constant. Like 2 into 3 into 4. Great. इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे. Brackets. हम्म. Then we put multiply sign. Then we multiply variable ca into b into c. काफी सही. Then we get 24 हम्म. ABC. Great. Pat on back. Clap for Mahek. काफी सही किया है उसने. I'm very proud. Great. So yeah, आपने सही rules follow किए and you have done this. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2a 3b 4c इनको मैंने तीनों लिखा मैंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में. देन कोएफिशिएंट्स को अलग किया, कोएफिशिएंट्स को अलग करके मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और वेरिएबल्स को अलग करके यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके वी गेट 24 एंड इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वी गेट ABC. सो मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है वेरिएबल्स में सिर्फ कुछ नहीं, ये लोग चिपक जाते हैं एक साथ और कुछ नहीं होता है अगर ये अलग अलग चीजें हैं. तो अगर सेम होता तो फिर कुछ और बात था, बट यहाँ पे क्योंकि अलग अलग 3 वेरिएबल्स हैं इसलिए ये तीनों चिपक गए और फाइनली 24 के साथ भी चिपक गए. ठीक है. सो मल्टीप्लिकेशन में यही होता है, जब अलग अलग टर्म्स होते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, वो लोग चिपक जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है. सो यू अंडरस्टूड कि कैसे वो 3 रूल्स फॉलो करना है. और ऑल्सो यू कैन सी कि यहाँ पे जो प्लस साइन था 2a के सामने प्लस साइन था ऑब्वियसली, क्योंकि पॉजिटिव साइन मतलब किसी कोई साइन नहीं है इसका मतलब उसके सामने पॉजिटिव साइन ही है. पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव एक्सप्रेशंस ओनली. सो ये भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन था, ये भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन था, ये भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन था, और ये तीनों मल्टीप्लाई होके या दोनों मल्टीप्लाई होके आप देख सकते हो कि आंसर पॉजिटिव में ही आया. सो दोनों पॉजिटिव या तीनों पॉजिटिव मिलके यहाँ पे पॉजिटिव आया. ठीक है. सो साइन रूल्स और बाद में थोड़ा आएगा, वी विल सी कि साइन रूल्स कैसे प्ले आउट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, बट टू गिव यू एन इनसाइट कि पॉजिटिव गिव अस पॉजिटिव, नेगेटिव गिव अस पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होता है तब नेगेटिव भी आता है आंसर. ठीक है. सो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट प्रॉब्लम. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कि कैसे ये मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है. सो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन. Yes, sir. कहाँ पे गया? लेट मी जस्ट डिलीट और अच्छी तरह से. So this is the answer. 2 into 3 into 4 ABC divided ABC. ठीक है. So let's try this one. Multiply 7k square and minus b square k. ठीक है. So यहाँ पे बहुत कुछ चीजें हैं जो देख के मुझे डर लगता है, बट हम डरेंगे नहीं. So 7k square है और minus b square k है. ठीक है. इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना होगा. So let's try it together. एक साथ करने की कोशिश करता है. 7k square into minus b square. ठीक है. तो बेस पहले लेट्स नॉट. ठीक है, फाइन. माइनस बी स्क्वायर के, इसके सामने कोएफिशिएंट क्या लगता है आपको?
है। They don't have coefficient only, sir. तो इसका मतलब क्या है, कोएफिशिएंट क्या हो सकता है? 1. 1. सो जब भी कोएफिशिएंट नहीं होगा उसका मतलब है कोएफिशिएंट इज 1. नाउ टेल मी दैट 1 ये सिर्फ 1 है या कुछ और भी है? 2 are नो, दैट इज द एक्सपोनेंट, वो अलग चीज है. आई एम जस्ट आस्किंग यू कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट सामने रहता है किसी भी एक्सप्रेशन के, जस्ट सामने जो नंबर होता है दैट इज द कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, और कोई भी नंबर जब नहीं होगा दैट मीन्स इट्स 1. बट डू यू थिंक इट्स ओनली 1, सिर्फ 1 है, और डज इट इन्वॉल्व एनीथिंग एल्स? यहाँ पे तो 7 है, दैट आई नो. यहाँ पे कोएफिशिएंट इज 7. Sir, only 1. Only 1. -1, sir. -1. Exactly, this is -1. ठीक है. So this is not only 1, this is -1. So you have to be very conscious about this fact कि यहाँ पे साइंस क्या है. So यहाँ पे साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. So now tell me कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन पहले? 7 into -7. 7 into -1. -1. Great. 7 into -1. उसके बाद Into अभी then यहाँ पे k so obviously these are not like terms. ये दोनों like terms नहीं है. k square और b square k, these are not like terms. But tell me इन दोनों में variables first same क्या क्या है? K. k k and यहाँ पे square. That यहाँ पे भी k same है. Sir, K. k is same. yes. तो यहाँ से k का मुझे क्या मिल रहा है? k square, ये चीज मिल रहा है. उसके बाद k मिल रहा है. यहाँ से क्या बचा है यहाँ पे? Yes. Exponent. Square b. b सिर्फ b या b स्क्वायर? Exponent. b B. square. तो सी यहाँ पे फर्स्ट टर्म से मुझे k स्क्वायर मिल रहा है, सेकेंड टर्म से मुझे k मिल रहा है. दिस विच आर सिमिलर, दिखने में सिमिलर है, मतलब सिर्फ ऊपर में ये एक्सपोनेंट्स अलग है, बट वेरिएबल वाइज लेटर वाइज दिस आर सेम, बेस वाइज दिस आर सेम, वेरिएबल सेम है ना, बट सिर्फ एक्सपोनेंट्स अलग है इसके. सो इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है. जिन ये दोनों बेसिकली वो Yes. फर्स्ट लव एक्सपोनेंट जो हमने सीखा वो फॉलो कर सकता है. सो वही मोटिव है मेरा, वही मुझे करना है यहाँ पे. सो दैट इज वाई हमने इसको अलग अलग मतलब सेम जगह पे लिखा ब्रैकेट में. और यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से b स्क्वायर बचता है, तो b स्क्वायर को अलग से लिखा. सो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 इंटू -1, नाउ टेल मी साइन रूल्स के हिसाब से क्या आंसर में आएगा. साइन प्लस और माइनस हो रहा है मल्टीप्लिकेशन. I think -7. एग्जैक्टली माइनस. तो क्योंकि एज आई टोल्ड ना कि सेम साइंस अगर हैं दोनों का देन द आंसर इज ऑलवेज प्लस. जो आंसर आएगा दैट विल कम इन पॉजिटिव. बट अगर डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर विल कम इन नेगेटिव. ऐसे करके आप याद कर सकते हो उसको. सो -7 यहाँ से मुझे कितना मिलेगा? k स्क्वायर इंटू k. K square. यहाँ से if you follow first law of exponents, K2. K into K square. No, sir. k स्क्वायर यहाँ पे No, K3. K3. That K square. के ऊपर यहाँ पे एक्सपोनेंट इज 1. अगर कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, उसका मतलब 1 है ऑलरेडी. K3. k3 और यहाँ से मुझे कितना मिला, बाकी क्या बचा है? b स्क्वायर. B square. इन तीनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कितना आएगा? नाउ इट इज वेरी -7. माइनस, हाँ माइनस -7 K3. और
B2. ठीक है, दिस इज द आंसर. गॉट इट? कैसे होता है एम्प्लीफिकेशन? Yes, sir. All right. So if I had to write this very clearly, वो कुछ ऐसा दिखता. ठीक है? Sir, send me this PDF, sir. Yeah, I will send you. ठीक है? So see, I have also done the same way. मैंने भी same तरह से किया था. Send it in group. Yes, I will send it. So you can see, right, how it is working out here. And I haven't skipped any step. I have done step by step, जिससे मुझे clarity मिलता है और मुझे आसानी भी होता है कि ठीक है, ऐसे ऐसे करके move on करना है. So this and therefore you should also follow this steps every time you do the multiplication, क्योंकि उसमें से आपको practice होने से आपको धीरे धीरे आपका क्या बोलते हैं उसको, सो आप लोग फेमिलियर होते जाओगे. एक बार फेमिलियर हो गए उसके बाद यू कैन जस्ट डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो. बट फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तब हर एक स्टेप आपको लिखना होगा. ठीक है? सो बी अवेयर ऑफ दैट एंड ट्राई टू फॉलो द 3 रूल्स जो भी मैंने बोला है. फर्स्ट रूल फिजूल का रूल है. फिर फर्स्ट रूल सिर्फ बोलता है कि लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई सब कुछ होता है. सेकेंड रूल Yes, sir. रूल शुरू होता है कि कैसे होता है, क्या होता है. सो मोस्टली सेकेंड और थर्ड रूल ही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एंड यू कैन सी हाउ. ठीक है? सो लेट्स सी द थर्ड वन, फोर्थ वन. कैन यू ट्राई ऑन दिस, ट्राई ऑन योर ओन? Yeah, sir. No. Yeah, I will try. Yes, sir. Go ahead and try. I'm giving you maybe 3 minutes to practice. Like try this. 3 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको. Once you are done, give me a thumbs up. Aisha, Husna, Aisha T, Alfia, and Hajira. Sir, Are you understanding? so this rough, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Hoping so. Let's see then. हाँ, शायद what were you saying? Oh, also this is time now. Sorry, Gino sir, give me 3 minutes more. Wrap up. Sahil, are you here? No. Damn. Okay, maybe I will ask Manan. या मे बी आई विल आस्क आयशा, क्योंकि आयशा का भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो इसलिए आई विल आस्क आयशा. आयशा, इफ यू कैन जस्ट कम ऑफ म्यूट एंड हेड. Sir, give this like practice questions. आई विल गिव यू अभी, आई विल गिव यू. ओके आयशा, आर यू देयर? तो 2b स्क्वायर m कौन है? प्लीज एडमिट दोस पीपल. माइनस 3b. Sir, No, can sir, I I tell? will. Which is the question? आपने सही किया है आयशा. अनु, Sir. अनु. और also if you want you can come also Aisha. Taj. I think Aisha Khanu is not. sir. Aisha, ठीक है, चलो ताज come here. मतलब not. Yes, sir. Okay, let's try to decode या let's try to do this. ठीक है? So first में क्या कोई भी है? Sir, 2b Coefficient क्या है इसमें? First वाले term. Constant क्या है? sir, constant 2. 2. Very good. So second rule के हिसाब से we know कि हमको कोएफिशिएंट या कांस्टेंट जो भी है इनको अलग से मल्टीप्लाई करना होगा, सेपरेटली मल्टीप्लाई करना होगा, और वेरिएबल्स जो है उनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है? सो यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे 2 और -3 है. Yes, sir. उसके बाद वेरिएबल्स क्या क्या सेम है यहाँ पे? I had to ask you. दोनों में क्या क्या सेम है?
Yes. Okay, sir. मतलब what is same in this two expressions? कौन से variable same है? B and M. Sir. Sir. 6. So अभी मैं आयशा this is what I'm BM. B and M. Sir. 3 and 2. ये तो constant है. These are constant which are coefficients which are there in this both of these two terms. But I'm asking you कि ये Sir, variable है ये M. variable. No, BB. BB is same and also MM is same, but उसके ऊपर भी कुछ numbers हैं. But we are not bothered about that अभी. We are just seeing कि क्या क्या alphabets या क्या क्या चीजें same है. And we are seeing कि B यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी B है, and M यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी M है. Right? So इसका मतलब है Yes, कि sir. के साथ ये हम मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट के साथ कोएफिशिएंट या कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट. सेकंड, b के साथ b can be multiplied because these are same alphabets. And similarly Yes, sir. m के साथ m मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि सेम अल्फाबेट. ठीक है. And also Same है sir. if we also see the second rule में क्या बोला था कि वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं based on the law which we learned पहले कि first law of exponents या ऐसा कुछ. ठीक है. So let's see how it plays out. तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा. Now tell me, is it correct or not? Yes, Step. 2, 3. Not, sir. Why? No, sir. No, Because, correct. sir, there have a minus sign. You don't Correct. put there. So माइनस भी हमको डालना होगा. जब तक माइनस नहीं डालोगे गलत है. ठीक है. So माइनस जो भी साइन होगा उसको हम कंसिडर करेंगे कोएफिशिएंट के साथ. So keep your eyes open for that. Moving onwards, next B. B के साथ यहाँ पे कुछ मैचिंग है. B. B है. B. So यहाँ पे सिर्फ B नहीं B स्क्वायर है. So B स्क्वायर ही लिखना into B. इसके बाद क्या बचता है मेरा यहाँ पे? M. Sir, M. M square. M into M. M square. Square. ठीक है. So now can we try multiplying this? 2 into minus 3. 2 into 3 क्या होता है? Minus 6. 6. 6. And plus और minus का multiplication -6. -6. minus आता है. Now moving Yes, to sir. this one. B square into B. तो B. Uh, B same है और ये यहाँ पे B के ऊपर क्या एक्सपोनेंट है? 1. 1. अगर कोई एक्सपोनेंट नहीं है इसका मतलब है इसके ऊपर 1 है. नाउ क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, ये वेरिएबल सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग हैं. जब ये वेरिएबल सेम होंगे ऊपर के जो नंबर्स होते हैं वो प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे. तो कैन यू टेल मी आंसर क्या होगा? b टू द पावर B3. sir. b3. ठीक है. तो आयशा ये चीज है कि मानो कि ऐसा कोई दोनों टर्म्स आ गए जहाँ पे अल्फाबेट सेम है बट उसके ऊपर जो नंबर्स हैं वो अलग अलग है. सो हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ये जो Add. नंबर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं. तो 2 + 1 becomes 3. ठीक है. Similarly for M, can you tell me Aisha? I want answer from Aisha only. M के ऊपर यहाँ पे क्या है? कोई नंबर है कि नहीं है? Is there any number like on the top of this M? 2. Arshad, wait. Aisha. M के ऊपर यहाँ पे कोई नंबर आपको दिख रहा है? Can you see any number over here? आयशा, Okay, sir. मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि M के जो ऊपर है इसके ऊपर कोई Okay, आपको नंबर दिख रहा है? मे भी कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क का. Sir, there will come M. यस, तो M तो आएगा. नाउ टेल 1 There is is no there, number sir, square. because Sir.
1 Sir, 3. So yeah, Sir, M3. M3. perfect. इन तीनों का अगर Answer is minus 6B3 M3. तो अभी इन तीनों को चिपका देते हैं एक साथ, just sticking them together. चिपकाने के बाद ये कुछ ऐसा आता है, आंसर ये टू शो यू इन अच्छे हैंडराइटिंग में कुछ ऐसा दिखे, ठीक है। तो दिस वाज इट। और भी कुछ सम्स थे जो प्रैक्टिस करने थे, बट ठीक है, फाइन, वी विल डू, Sir, you can give us homework, no? but that is different concept. Maybe I will give you homework from your book itself. Okay, sir. Yeah, so I hope ये समझ में आया आप लोगों को कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है एंड क्या क्या रूल्स फॉलो करना होता है उसके लिए। और अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। जल्दी से मुझे क्विक 1 to 5 में दिखाओ कि मल्टीप्लिकेशन में कितने कॉन्फिडेंट हो आप। कॉन्फिडेंट चाहिए मुझे लोग, मतलब कॉन्फिडेंस देखना है मुझे लोगों का, irrespective of your understanding. Okay, Mehak says 5, that's great. मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं पूछ, मैं आई एम नॉट आस्किंग योर अंडरस्टैंडिंग, आई एम जस्ट आस्किंग यू हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर। शायद सेज ओके, ग्रेट, ऑसम। आयशा सेज 3.5, इट्स फाइन, प्रैक्टिस करने से यू विल मूव टू 5। What, sir? Aisha says she's at 3.5, so fine, it's fine. Others quickly, I'll wait for more 5 seconds for the responses. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Sahil is at 10, that's great, fine. Okay, Aisha is near to 4, that's nice. Sahil is at honest, fine, great to know that, Sahil, great. Aisha Taj is at 3, fine. As we practice more we will able to understand more and we will be able to reach at 5, okay, fine, awesome. So right now what I will do, I will send you few questions on this simple छोटे terms के ऊपर multiplication, and I want every one of you to practice that, so that practice करने से और आपका हाथ खुल जाए, easy हो जाए आपके लिए, right? So please, Okay, sir. otherwise you will just forget this, क्योंकि बहुत सारे rules होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें याद रखने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड कि आप प्रैक्टिस करो जितना हो सके, एंड ऑल्सो आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस PPT जितना भी आज हमने किया, एंड ऑल्सो द रिकॉर्डिंग। सो एट एनी प्लेस इफ यू आर स्टक, प्लीज़ गो बैक टू द रिकॉर्डिंग, सी द पार्ट, एंड इवन इफ यू आर स्टक आफ्टर दैट ऑल्सो, देन यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी, ठीक है। So thank you so much. See you soon. See you tomorrow. We will practice more tomorrow. We will move onwards to the next type of problems on multiplications. But if you have any kind of doubts regarding today's class, please reach out to me. Okay? Call me. Okay, sir. And those who are watching right now, call me now. Call me now. Chalo. See you. Tata. Bye bye. I will see you in tomorrow.